Next question is, a patient after a road traffic accident presents to you with blindness. His MRI reveals an aneurysm involving optic chiasma. Which of the following blood vessels is the common cause of aneurysm in the optic chiasma? तो इसमें आंसर है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ठीक है, एन्यूरिज्म ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आर क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व एंड द chiasmata which can compress this pathway will result into visual disturbance. विजुअल डिस्टर्बेंस का रीज़न वही है, दैट इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व और द chiasmata by the anterior communicating artery aneurysm. Next question is, which of the following is a stochastic effect of radiation? Stochastic effect of radiation is radiation-induced skin cancer. Stochastic effects are the health effects that occur randomly for which probability of the effect occurring is present rather than the severity. मतलब कितनी डोज चाहिए इफेक्ट अकर करने के लिए वो नहीं प्रेजेंट होती. छोटी डोज से भी हो सकता है, विदाउट थ्रेशोल्ड से भी हो सकता है. हेरिडिटरी इफेक्ट्स और कैंसर इंसिडेंस एग्जाम्पल है स्टोकास्टिक इफेक्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 10-year-old चाइल्ड विद रिड्यूस्ड रैमल हाइट फॉलोइंग अ ट्रॉमा underwent surgery. After 2 years, he came with a shift of jaw to one side on mouth opening. What could be the reason for such finding? देखो, एक साइड पे जो ग्राफ्ट हमने किया है उसकी ओवरग्रोथ अगर हो गई तो हमारा जॉ जो है वो दूसरी साइड को शिफ्ट कर जाएगा. द फॉलोइंग केस मेंशन्स द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा फॉलोइंग द रिड्यूस्ड रैमल हाइट suggestive of post-traumatic TMJ ankylosis. Post-traumatic TMJ ankylosis. Post-ankylotic resection, that is a shifting of jaw, again is suggesting that the interpositional graft is used and has undergone hypertrophy and is undergrown. ठीक है, जो इंटरपोजिशनल ग्राफ्ट हमने किया है वो हाइपरट्रॉफी हो गया एक साइड को और दूसरी साइड में अंडरग्रोन हो गया. Pozzillo popularized this procedure for using CCG for TMJ ankylosis in 1987. In newly literal cases of CCG that may be taken from the fifth rib causing the submammary incision, costochondral graft use करते हैं यहाँ पे. The CCG has various benefits including its growth potential, its biological compatibility and the fact that it can remodel to form new condyle. तो एक साइड पे CCG जो है वो एक्टिव रह गया है जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है. However, donor side morbidity, resorption or excessive growth on the treated side and the inability to catch up with the speed of normal growth on the normal side are the potential demerits. हमने दोनों साइड पे सर्जरी नहीं की थी, एक साइड पे सर्जरी की थी तो कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट लिया था. उसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट का वो उसका ग्रोथ पोटेंशियल इज़ डिफरेंट दैन नॉर्मल जो हमारा दूसरी साइड का कॉन्डाइल है वहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो रैमस की हाइट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी. इस साइड का जो मैंडिबल है वो ज़्यादा ग्रो करके चिन को दूसरी साइड टर्न कर देगा. Next, to get a scratchless, lustrous finish for composite restoration, which finishing and polishing material should be used? तो आंसर इज पॉलिशिंग पेस्ट शुड बी यूज्ड. ठीक है, पॉलिशिंग पेस्ट आर mentioned in the polishing protocols that utilizes various compounds including aluminum oxide. Aluminum oxide, silicon dioxide, diamond abrasive जो है वो polishing paste के अंदर आते हैं. Common tools for polishing includes rubber cup, points, abrasive polishing disc and dental stones. While the diamond and carbide burrs are used for during finishing process for initial gloss reduction, they tend to leave a rough surface that requires subsequent polishing to achieve a smooth finish. In additional step to enhance the overall polish involves the use of diamond polishing paste after the primary polishing system. Studies have shown that using a diamond polishing paste can significantly reduce the surface roughness and enhance the glossiness of the restoration, achieving the results within the required thresholds. मतलब जैसा पेशेंट को डिज़ायर्ड है, जैसा हमें डिज़ायर्ड है वैसा मिलता है. कौन सा पेस्ट यूज़ करेंगे फाइनली हम? डायमंड पॉलिशिंग पेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वॉज स्टडिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. ही विल फाइंड व्हाट? तो ही विल फाइंड द लिपिड बाइलेयर एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस द मेम्ब्रेन ईजिली. ठीक है, ये आंसर है इसका. This reflects that the fat lipid bilayer allows for easy passage of the fat soluble substances while restricting the water soluble substances. The cell membrane is primarily composed of lipid bilayer.
which is a double layer of phospholipids. The phospholipids have two components, hydrophilic, that is water loving component, that is the head, and hydrophobic, that is the water fearing element, that is the tail. This structure makes the membrane selectively permeable, meaning it will allow certain substances to pass through it while restricting others. Fat soluble substances such as lipids and certain vitamins can easily pass through the lipid bilayer due to the similar nature of this chemical. Lipids की nature और fats की nature same. Water soluble substances, these are the substances such as ions, glucose. They have difficulty in crossing the lipid bilayer directly. They often require specific transport proteins embedded in the membrane to facilitate their passage. ठीक है, वाटर वाले मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए रहता है ताकि उनका पैसेज जो है वो जा सके, अंदर से बाहर जा सके वो मेम्ब्रेन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 65-year-old स्मोकर पेशेंट विद पेनलेस स्लो ग्रोइंग मास इन द पैरोटिड ग्लैंड. विच इमेजिंग मोडालिटी इज बेस्ट फॉर असेसिंग द डीप लोब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरोटिड. फॉर डीप लोब इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं MRIs. ठीक है, MRIs दे प्रोवाइड परफेक्ट एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट. CT यूजफुल होता है लेकिन लेस इफेक्टिव होता है इन डिफरेंशिएटिंग बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर. लेकिन सबसे पहले हम करते हैं अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन डिटेक्शन के लिए हम करते हैं, लेकिन ये डीप स्ट्रक्चर्स को इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेंटल केरीज अकरेंस. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, आयरन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर. तो फ्लोराइड की अगर वीकनेस होगी तो डेंटल केरीज के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. फ्लोराइड डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइटेंड रिस्क ऑफ डेंटल केरीज. फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज एज इट स्ट्रेंथन्स एनामल थ्रू रीमिनरलाइजेशन एंड रिड्यूसेस डीमिनरलाइजेशन. डीमिनरलाइजेशन रिड्यूस करता है और रीमिनरलाइजेशन प्रमोट करता है. While zinc and vitamin D deficiencies can also influence dental caries, they do so via a different pathway, primarily affecting the tooth mineralization and overall oral health. ठीक है, ओरल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं विटामिन डी और ये जो जिंक है, लेकिन मेनली फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. अगर हम एक क्रोनोलॉजी में लिखें तो सबसे पहले फ्लोराइड आएगा, देन विटामिन डी आएगा एंड देन विल बी जिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विजिटेड OPD विद अ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन है उसके, और उसके एक्सरे में हेमीथोरैक्स ओपेसिफिकेशन है. हेमीथोरैक्स ओपेसिफिकेशंस. हिज प्लूरल टेस्ट वाज डन. ठीक है, लंग्स में जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका टेस्ट किया गया, विच अपॉन फॉलोइंग हैड एन इंडिकेशन फॉर ओपन चेस्ट ट्यूब थोरैकोस्टोमी. तो ये क्यों किया गया हमारे पास? तो आंसर है इसमें ड्यू टू फ्रैंक पस कलेक्शन दिस थोरैकोस्टोमी वाज डन. This is a condition of pleural empyema that is defined as the presence of purulent fluid within the pleural space, and surgical intervention is required by decortication followed by video assisted thoracoscopic surgery. वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, उससे डिकॉर्टिफिकेशन करते हैं. ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ओपन थोरैकोटोमी. ठीक है, जिससे कि हम प्लूरल फ्लूइड को, एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड या पस कलेक्शन जो है उसको बाहर निकालते हैं. Next question is for lymphedema, the investigation of choice is what? For lymphedema, the investigation of choice is lymphoscintigraphy. Lymphoscintigraphy. Next, for lymphedema, the investigation of choice is what? Lymphedema के लिए lymphocintigraphy करी जाती है. Lymphoscintigraphy is the most commonly but overall uncommon diagnostic tool that is used for identifying the lymphatic abnormalities. It has largely replaced the lymphoangiography. A radio-labeled sulfur colloid tactinium-99 sulfur colloid is injected. ठीक है, इसमें tactinium-99 sulfur colloid जो पुराना lymphoangiography वाला तरीका है उसमें tactinium-99 M sulfur colloid जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इंटू सबडर्मल इंटरडिजिटल रीजन अफेक्टिंग द लिम्फ, जहाँ पे वो लिम्फ के अंदर जाके कलर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, रेडियो लेबल्ड कलर प्रोड्यूस करता है. द लिम्फैटिक ट्रांसपोर्ट इज मॉनिटर्ड विद द होल बॉडी गामा कैमरा एंड मेजर लिम्फैटिक्स एंड द लोड्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय दिस. डाई यूज़ कौन सी कर रही है? tactinium-99 सल्फर कोलाइड. उसके बाद एक गामा कैमरा लेते हैं, उससे पूरी बॉडी के लिम्फैटिक्स में कहाँ कहाँ वो डाई जा रही है, रेडियो लेबल डाई जा रही है, उसको विजुअलाइज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड इम्प्लांट इज प्रेफर्ड ओवर नॉर्मल टाइटेनियम मशीन इम्प्लांट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट. देखो, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड इम्प्लांट नॉर्मल टाइटेनियम इम्प्लांट में से ज़्यादा कहाँ प्रेफर करते हैं? सबसे पहला है कि फ्रेश एक्सट्रैक्शन साइट है,
अपर सेकंड मोलर की, वहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। न्यूली ग्राफ्टेड एरिया है, वहाँ प्रेफर कर सकते हैं। देखो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसीलिए न्यूली ग्राफ्टेड साइट, फ्रैक्चर एक्सट्रैक्शन साइट वहाँ प्रेफर करते हैं। तीसरा आता है नीड फॉर ग्रेटर बोन इम्प्लांट इंटरफेस कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया से हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, बेटर जो है वो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है, इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा ग्रेटर बोन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड इम्प्लांट प्रेफर करते हैं, सच इन द केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इडेंचुलिज्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म इडेंचुलिज्म में बोन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पे भी हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड इम्प्लांट प्रेफर करेंगे। लेकिन D1 बोन जहाँ पर होती है, जो कि चौथा ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ पे हम नॉर्मल टाइटेनियम इम्प्लांट भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि D1 बोन जो है वो बहुत ज़्यादा पोरस नहीं होती। इट इज़ द डेंसेस्ट बोन इन द ओरल कैविटी एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग ओवर द इम्प्लांट। The use of porous hydroxyapatite coating has definitively increased the durability and biocompatibility of the implant prosthesis, that is JRPs, since its introduction. The application of porous hydroxyapatite coating has enabled the implant biofixation, that is biological fixation of cementless implants, allowing more osseointegration of the implant prosthesis. Next question is, a visit by the patient who complains with fever, tachycardia, thyrotoxicosis. फीवर, टैकीकार्डिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, सबसे ज़्यादा लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसमें? फीवर, टैकीकार्डिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस में सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑलराइट, हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ स्टेट of excessive thyroid hormone in the body due to hyperfunction of thyroid gland. It is also known as Graves' disease or Base-Dow's disease. It is the most common cause of thyroid toxicosis. ठीक है, ग्रेव्स डिजीज जो है दैट इज बेस डाउ disease, that is the most common cause of thyrotoxicosis. Important manifestations in thyrotoxicosis or hyperthyroidism are weight loss, increased appetite, sweating, palpitation, tremors, nervousness. There are signs of tachycardia, atrial fibrillation, lid retraction, wide palpebral fissures and exophthalmosis. आंखें बाहर को प्रोट्रूड करती हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेस्ट मॉड्यूल? क्रेस्ट मॉड्यूल का फंक्शन होता है कनेक्शन बिटवीन द इम्प्लांट एंड अबटमेंट. ठीक है, इट इज टू प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द इम्प्लांट एंड अबटमेंट. क्रेस्ट मॉड्यूल इज द पोर्शन ऑफ द टू मेटल पीस इन अ डेंटल इम्प्लांट डिजाइन टू होल्ड द प्रोस्थेटिक कंपोनेंट इन प्लेस एंड टू क्रिएट अ ट्रांजिशन जोन फॉर बियरिंग द लोड ऑन टू द इम्प्लांट बॉडी. ठीक है, लोड को इम्प्लांट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेस्ट मॉड्यूल जो है वो इम्प्लांट और प्रोस्थेसिस के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, जिससे जो अबटमेंट है या जो प्रोस्थेसिस है वो इम्प्लांट के अंदर ढंग से सीटेड हो सके और इक्वली जो है फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट इफ कंप्लेनिंग विद स्टिकी स्टूल्स in his defecation which are difficult to flush, they are occurring due to deficiency of what? Answer is lipase enzyme की अगर deficiency होती है तो sticky stools हो जाते हैं. ठीक है, मतलब हमारे जो लिपिड्स हैं वो फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फैट्स जो है फीसिस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए. कंडीशन इज नोन एज स्टिएटोरिया. Stool may be bulky, difficult to flush and have pale and oily appearance and can specially be foul smelling. An oily leakage or some level of fecal incontinence may also occur. There is increased fat excretion which may be measured by determining the fecal fat level. Alright. Steatorrhea occurs only when 90% of the pancreatic output has been lost. Pancreatic output किस फॉर्म में लॉस होता है कि हमारे पास इनएडिक्वेट डिलीवरी होती है बोथ लाइपेज एंड बाइकार्बोनेट की. द एसिडिक एनवायरनमेंट फर्दर इनएक्टिवेट्स द एक्टिव लाइपेज whatever that is present and precipitates the wild salts, worsening the fat absorption. अब फैट की absorption नहीं हो पाती तो सारा फैट जो है वो स्टूल के जरिए बाहर निकल आता है. ठीक है, that is known as steatorrhea. Next, a 37-year-old female patient complained of altered sensorium and was admitted to hospital's ICU. On examination, she suffered from high-grade fever, that is 102 degree Fahrenheit, with deranged vitals and nostril rigidity, which indicates leptomeningeal involvement. Which of the following empirical antibiotic therapy should be started? The answer given is ceftriaxone plus vancomycin. Ceftriaxone plus vancomycin जो है वो दी जाती है.
It is a condition of acute bacterial meningitis and is an emergency. Antimicrobial treatment should be started as soon as possible. Prognosis depends upon early initiation and early intervention of the antimicrobial therapy. Empirical choice of antibiotic in bacterial meningitis are: first combination बनता है in neonates and infants less than 3 months of age. जिनकी 3 मंथ से कम उम्र है उनको हम क्या देंगे? We'll give ampicillin प्लस सिफेट्राइक्सॉन और सिफओटैक्साइम. ठीक है, सिफोटैक्साइम या फिर सिफेट्राइक्सॉन में से एक चीज़ देंगे. अब अगर बात आती है चिल्ड्रन और अडल्ट्स की, चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, न्यूनेट्स और इसकी बात होगी. अब चिल्ड्रन और अडल्ट में हम देते हैं वैंकोमाइसिन प्लस सिफट्राइक्सॉन और सिफओटैक्साइम. तीसरी बात आती है अडल्ट है लेकिन अडल्ट की एज जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 55 ईयर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एम्पिसिलिन देंगे, वैंकोमाइसिन देंगे प्लस सिफट्राइक्सॉन या फिर सिफोटैक्साइम. ठीक है. चौथी कंडीशन आती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड मेनिंजाइटिस है या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक मेनिंजाइटिस है या फिर पोस्ट सर्जिकल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है. इसमें वी विल गिव एम्पिसिलिन प्लस वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट एजिडाइम. ठीक है, ये 3 चीज़ें देते हैं, एम्पिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सेफ्ट एजिडाइम, अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11-year-old गर्ल विजिट्स द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विद अ कंप्लेंट व्हेन शी सिट्स behind in the classroom. She cannot see the blackboard clearly but she can read her textbook clearly. तो उसको कौन सी दिक्कत है? It is a condition of myopia. Myopia is another name for nearsightedness. ठीक है, it's a refractive error जिससे कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती लेकिन पास वाली चीज़ें नॉर्मल दिखाई देती. ठीक है, क्योंकि इट हैपन्स व्हेन द शेप ऑफ द आई मेक्स द लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना अ लाइट सेंसिटिव लेयर दैट इज टिश्यू इन द बैक ऑफ योर आई इंस्टेड ऑफ ऑन इट. मतलब इन फ्रंट ऑफ रेटिना अगर इमेज बन रही है रादर देन ऑन द रेटिना, तब हमें मायोपिया या नियर साइटेडनेस जो है वो होती है. ठीक है, सिम्टम्स में क्या होता है कि दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती, आपको स्क्विंट करना पड़ता है आँख को, तब जाके आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं. क्योंकि स्क्विंट करने से जो विजिबल लाइट है वो आपकी फोकस को यहाँ से जो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन रही है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाती है, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखना स्टार्ट होता है. ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा. दैट इज़ नोन एज नियर साइटेडनेस और मायोपिया. दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, पास की चीज़ें दिखाई देंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमीनो एसिड एंटर्स एट द लेवल ऑफ फ्यूमरेट. फ्यूमरेट के लेवल पे एंटर करता है टायरोसिन. ऑलराइट, डिफरेंट ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स डिफरेंट लेवल पे इस साइकिल के अंदर ऐड करते हैं. ठीक है, पहला आता है पायरुवेट के लेवल पे एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन. AGSCTT, दैट इज एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये एंटर करते हैं एट द लेवल ऑफ पायरुवेट. सेकेंड लेवल इज ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट. ऑक्सैलो एसिटेट के लेवल पे एस्पर्टेट एंड एस्परजिनिन, aspartate and asperginin at the level of oxaloacetate. Third is at the level of alpha ketoglutarate. इस लेवल पे arginine, glutamate, glutamine, histidine and proline. Arginine, glutamate, glutamine, histidine, proline at the level of alpha ketoglutarate. Fourth level, that is at the level of succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A level पे isoleucine, methionine and valine. Isoleucine, methionine and valine in succinyl coenzyme A. फिफ्थ लेवल पे दैट इज एट द लेवल ऑफ फ्यूमरेट. फ्यूमरेट के लेवल पे एंटर करते हैं जो अमीनो एसिड्स या फिर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, दे आर फिनाइल एनिलिन एंड टायरोसिन. फिनाइल एनिलिन एंड टायरोसिन एट द लेवल ऑफ फ्यूमरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर्स इन व्हाट. सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर्स इन एपिफाइसिस. In mammals, the longitudinal skeletal growth occurs primarily through the endochondral ossification, which involves the formation of bone on the cartilaginous template. Bone formation होती है on the cartilaginous template. During this process, the primary ossification center is formed within the diaphysis and the secondary ossification center is formed on the epiphysis, which is initially cartilaginous. ठीक है, जो secondary ossification center है वो initially cartilaginous होता है, बाद में वो ossify कर जाता है. And it is present on epiphysis. Secondary is present on epiphysis and the initial one is present on diaphysis, or the primary is formed on diaphysis. Alright. Next question is which is not included in CURB 65 scale of pneumonia. तो कर्व 65 स्केल ऑफ निमोनिया के अंदर फीवर इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड थी? ब्लड प्रेशर इंक्लूडेड था,
एज इंक्लूडेड थी और ब्लड यूरिया लेवल जो है वो इंक्लूडेड है, बट फीवर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन कर्ब 65 स्केल. The CURB 65 score, CURB 65 score, it is used to predict the mortality secondary to the community acquired pneumonia and is widely used to identify the patients who can be managed as an outpatients. ठीक है, हम आउट पेशेंट इन पेशेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मोर्टैलिटी स्कोर के बेसिस पर कर्ब 65 स्कोर देते हैं. ठीक है, कर्ब 65 में CURB 65 आता है. C मीन्स कन्फ्यूजन. ठीक है, इसका 1 पॉइंट मिलता है. अगर कन्फ्यूजन प्रेजेंट है देन 1 पॉइंट. U मीन्स यूरिया लेवल ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, 1 पॉइंट मिलता है. R में आता है RR, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो 1 पॉइंट मिलता है. फिर आता है ब्लड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन. ब्लड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करा होता है, दैट इज़ 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और डायस्टोलिक अगर हमारा 60 से कम है, सिस्टोलिक 90 से कम है और डायस्टोलिक जो है वो 60 से कम है, मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन, तो वहाँ पे 1 स्कोर मिलता है. अगर एज 65 से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी 1 स्कोर हम देते हैं. अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? कर्ब 65 में जो भी स्कोर आया है अगर वो 0 to 1 है देन द रिस्क ग्रुप इज़ 1. ठीक, इसमें 30 डेज मोर्टैलिटी होती है 1.5% में. ठीक है, मतलब 30 दिन के अंदर सिर्फ 1.5% लोगों में ही मोर्टैलिटी देखी गई है. इट इज़ अ वेरी लो रिस्क वाली कंडीशन है. और इसमें होम ट्रीटमेंट हम निमोनिया की कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली निमोनिया को हम ग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे. सेकेंड आता है 2, स्कोर है 2, तो इसमें 9.2% जो है दैट इज़ द मोर्टैलिटी रेट. 1.5% से सीधा 9.2% जो है वो जंप कर जा रहा है इन स्कोर 2. तो यहाँ पे प्रोबेबल एडमिशन एंड वेरी क्लोज अगर आउट पेशेंट मैनेजमेंट है तभी हम करेंगे. ठीक है, मतलब अगर पेशेंट जो है इजीली हॉस्पिटल तक आ सकता है, पास ही रहता है, तब हम आउट पेशेंट मैनेजमेंट करेंगे, और नहीं तो हम जो है वो प्रॉबेबली वी विल एडमिट हिम इन द हॉस्पिटल. थर्ड, अगर 3 से 5 स्कोर आता है और निमोनिया है पेशेंट को, इट विल कम अंडर ग्रुप 3. वहाँ पे 22% पेशेंट में कंप्लीट मोर्टैलिटी होती है, 22% पेशेंट में, एंड एडमिशन टू द हॉस्पिटल इज़ नेसेसरी एंड मैनेज एज सीवियर निमोनिया. उसको मैनेजमेंट हमें सीवियर निमोनिया जैसी करनी पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेल पेशेंट of 23 years of age visited the dental department with the chief complaint of pain and tooth discoloration. He gives a history of trauma 2 years back in the same region. On examination, a sinus formation is also noticed. Most probable diagnosis will be what? Most probable diagnosis will be chronic abscess secondary to pulpal necrosis. ठीक है, chronic abscess secondary to pulpal necrosis. See, pulpal necrosis is a clinical diagnostic category indicating the death of dental pulp, necessitating the root canal treatment. The pulp is non-responsive. The pulp testing is asymptomatic. The pulp necrosis by itself does not cause any apical periodontitis, that is pain to percussion, or radiographic evidence of ossification, osseous breakdown, unless the canal is infected. देखो, जो पल्प नेक्रोसिस है वो खुद कोई भी दिक्कत नहीं देता है. ये जो नेक्रोस पल्प होता है इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप करके कैनाल को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पस एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन अराइज करती है टू द परकशन. ऑलराइट, क्रॉनिक अपाइकल एब्सेस, इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू पल्पल इन्फेक्शन. पल्पल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अपाइकल बोन में होता है, दैट इज़ नोन एज, जो सराउंडिंग बोन है उसमें हो रहा है, दैट्स नोन एज क्रॉनिक अपाइकल एब्सेस. ठीक है, इन पल्पल इन्फेक्शन और नेक्रोसिस कैरेक्टराइज बाय ग्रेजुअल ऑनसेट, लिटिल टू नो डिस्कम्फर्ट एंड इंटरमिटेंट डिस्चार्ज ऑफ पस थ्रू एन एसोसिएटेड साइनस ट्रैक. ठीक है, साइनस ट्रैक खुल गया है. रेडियोग्राफिकली देर इज अ टिपिकल साइन ऑफ ऑसियस डिस्ट्रक्शन सच एज रेडियोलुसेंसी. टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डायरेक्टिंग साइनस व्हेन प्रेजेंट, गट्टा पर्चा कोन हम यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद गट्टा पर्चा से हम ट्रेस कर लेते हैं साइनस किस दांत के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट उसी दांत की जो है सबसे पहले करेंगे, ताकि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ट्रीट किए जा सके. ठीक है, बाकी जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट, जो भी बाकी किसी और दांत में कोई दिक्कत होगी वो सब कुछ बाद में किया जाएगा. नेक्स्ट, पिन लेज प्रेपरेशन, व्हेन शुड इट नॉट बी गिवन. ठीक है, जब थिन और वाइटल टीथ होता है तब हम पिन लेज प्रेपरेशन नहीं देते. सी, पिन को हम डेंटिन के अंदर एम्ब्रेड करते हैं, फिर फिक्स करते हैं. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा थिन टूथ है और वाइटल टूथ है तो वहाँ पे अगर हमने पिन को डेंटिन के अंदर डाल दिया, फिक्स कर दिया, तो वो टूथ जो है बहुत जल्दी टूट जाएगा. वो डेंटिन, वो स्ट्रक्चर जो है उसे वियर नहीं कर पाएगा.
ठीक है. So there are some contraindications regarding the pin ledge preparation. First is poor oral hygiene. Second is high caries rate. Third is large pulp size. Pulp chamber का size जो है वो large है. ठीक है. Thin teeth labiolinguli, not possible to place pinholes of adequate size and length that are required for strength of the pin. ठीक. फोर्थ आता है नॉन वाइटल टीथ में हम पिन वगैरह नहीं देते हैं. फिफ्थ आता है वाइल अलाइनमेंट ऑफ अबटमेंट विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रपोज्ड पाथ ऑफ विड्रॉल. मतलब पाथ ऑफ विड्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एक नहीं पाथ ऑफ विड्रॉल, मल्टीपल पाथ ऑफ विड्रॉल है. तो वहाँ पे उसको अबटमेंट को अलाइन करने के लिए हम डायरेक्ट पिन नहीं देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू बॉर्न बेबी हैज साइनोसिस एंड वैस्कुलर सिस्टम इज नॉर्मल. वैस्कुलर सिस्टम नॉर्मल है, साइनोसिस उसमें प्रेजेंट. तो क्या डायग्नोसिस बनेगा आपका? डायग्नोसिस बनेगा IRDS, दैट इज इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, or this is also called as neonatal respiratory distress syndrome. It is a common of respiratory distress in the newborns presenting within the hours of birth. ठीक है. मोस्ट ऑफन इमीडिएटली हो सकता है या फिर डिलीवरी के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आ सकता है बच्चा. द इन्फेंट विद द नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ऑफन बॉर्न प्रीमेच्योर एंड प्रेजेंट्स विद द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी और विद इन द फ्यू मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी. जो प्री बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है. द इन्फेंट मे प्रेजेंट विद डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, पॉसिबली डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस. अपॉन क्लिनिकल एग्जामिनेशन देयर इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड वर्क फॉर ब्रीदिंग, इंक्रीज्ड टेकिपनिया, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग. जब वो बाहर सांस निकालेगा तो वो आवाज़ करेगा, ऐसी वाली आवाज़, ग्रंटिंग होगी, एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग होगी. देयर इज़ नेजल फ्लेयरिंग फॉर मोर demand for oxygen or more demand for air. There will be subcostal retraction, there will be subxiphoid retraction, there could be intercostal retraction and suprasternal retraction. छाती आपको अंदर को रिट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी ताकि एक्सेस प्रेशर बनाती हुई दिखाई देगी ताकि वो सांस ले पाए. And the use of accessory muscles will be there as well as cyanosis will be there and poor peripheral perfusion will be there in the respiratory distress syndrome. Auscultation reveals uniformly decreased air entry in lungs. Next question is patient with hyperthyroidism will show increased levels of which of the following antibodies. कौन से antibodies जो हैं वो thyroid hyperthyroidism में increase कर जाएंगे? So antibodies for thyrotropin receptor, that is TRAB, thyrotropin receptor antibodies, ये increase कर जाते हैं in the cases of primary hyperthyroidism. Primary hyperthyroidism, that is the Graves' disease, approximately 95% of the patients of Graves' disease will have raised level of TRAB, that is thyrotropin receptor antibodies. ठीक है. And 70% will be having TROP, ठीक है, TROAB, थायराइड peroxidase ऑटो एंटीबॉडीज 70% में ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंटर बॉटम साइन इन स्लीपिंग सिकनेस इज व्हाट? इट इज़ पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी. विंटर बॉटम साइन जो होता है दैट इज़ द पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी. विंटर बॉटम साइन इज द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स एट द बैक ऑफ द नेक which is a sign of African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness. African trypanosomiasis is known as sleeping sickness. Posterior cervical lymphadenopathy या फिर posterior triangle का जो cervical region होता है वहाँ पे lymphadenopathy देखी जाती है. That is known as winter bottom sign. It is commonly seen in the infection with TB gambinis. That is trypanosomia. ठीक है. उसका इन्फेक्शन जब होता है तो उसके अर्ली फेज में लिम्फेडिनोपैथी देखी जाती है. बट लिम्फेडिनोपैथी कैन ऑल्सो बी सीन इन एक्सिलर, इंग्वाइनल एंड एपिट्रॉक्लियर रीजन्स. एक्सिलरी रीजन में भी देखी जा सकती है, इंग्वाइनल रीजन में भी देखी जा सकती है, एपिट्रॉक्लियर रीजन में भी देखी जा सकती है. अदर सिम्टम्स आर इंटरमिटेंट फीवर एंड प्यूराइटिस. ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर आता रहेगा और प्यूराइटिस हो जाएगा, पूरी बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट हैड 10 एपिसोड्स ऑफ डायरिया. 10 एपिसोड डायरिया के थे, 7 से 8 एपिसोड उसके वॉमिटिंग के हो गए. अब उसको एक्यूट किडनी इंजरी हुई है. तो इस एक्यूट किडनी इंजरी का क्या रीज़न रहा होगा? इट इज़ कॉज ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
Due to what? Due to metabolic acidosis. See, diarrheal illness is the most common cause for normal anion gap acidosis. Diarrheal stool contains sodium, potassium and bicarbonate. तो इन तीनों आयंस का जो है वो बॉडी में लॉस हो जाएगा, लेकिन क्लोराइड का बॉडी में लॉस नहीं हो पाता, बिकॉज क्लोराइड जो है वो डिस्टल एंड ऑफ द नेफ्रॉन से वापस रीअब्जॉर्ब कर जाता है। तो हमारे पास 3 आयंस लॉस हो जा रहे हैं बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहे हैं, प्लस वॉल्यूम डिप्लीशन इज देयर। ठीक, दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड ही ज़्यादा रह जाता है। तो क्लोरोसिस एक कंडीशन है जो कि बॉडी के अंदर इनिशिएट करना शुरू हो जाती है। एसोसिएटेड विद दिस देयर इज इंक्रीज क्लोराइड रिजॉर्प्शन, जो हमने अभी बात की, इन द डिस्टल नेफ्रॉन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो हमने अभी बात की है। ठीक है, अलॉन्ग अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, बिकॉज देयर इज नो एसिड विद एन एसोसिएटेड अनमेजर्ड अनायन। ठीक है, इस अनायन के साथ कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, H पॉजिटिव जैसा नहीं है जो इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो ये अनायन जो है वो एक अनायन गैप जनरेट कर देता है, जो कि अनचेंज रह जाता है बॉडी के अंदर। अब ये एक फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहा है, ये बॉडी में जाके अलग अलग चीज़ों पे जाके हमला करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी और क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इन एडिशन डायरेक्ट पोटेशियम का लॉस भी हो रहा है स्टूल में, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, और ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, जिससे कि डिस्टल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन में सोडियम को एक्सचेंज करने के लिए और पोटेशियम को एक्सचेंज करने के लिए जो बैलेंस चाहिए वही नहीं बचेगा, देयरबाय प्रमोटिंग द वॉल्यूम एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ हाइपोकैलीमिया। अब हाइपोकैलीमिया भी हो रहा है यहाँ पे, ये बाइकार्बोनेट भी गया, ये भी गया, अनायन गैप भी गया, ये सारी की वजह से लास्ट में जो किडनी है उसी से वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बॉडी में ये जो अनायन है, दैट इज क्लोराइड आयन, इट इज़ इंक्रीजिंग, दैट लीड्स टू एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट, अ पेशेंट डेवलप्स ब्रैडीकार्डिया इन डेंटल चेयर, उसकी हार्ट रेट जो है स्लो हो गई है डेंटल चेयर की, तो कौन सा ड्रग जो है उसे यूज़ करना पड़ेगा हमें? विल यूज़ एट्रोपिन फॉर ब्रिंगिंग हिम बैक। ठीक है, दिस इज अ एंटी मस्केरेनिक anticholinergic drug that is indicated for management of hypotension, which is accompanied by bradycardia. The dose of atropine that is recommended is 0.5 milligram initially, followed by increments as necessary. जितना जितना necessary है उतना increment देना है अगर person को emergency तक हमें पहुँचाना है तो। ठीक है, with maximum dose of 3 milligram in a day for a 70 kg healthy adult. All right. Next question is, a 4-year-old child was brought to the department by his parents complaining of shunted growth. Growth shunted है. On further investigation, intelligence was found to be less than normal with a pot belly appearance. ठीक है, most likely the diagnosis will be what? देखो, pot belly appearance हमें एक चीज़ दी हुई है जो कि हमारा ये आंसर डिटेक्ट करेगा, that is क्रेटिनिज्म। ठीक है, 4 साल का बच्चा था, पोर्ट बेली अपीयरेंस। क्रेटिनिज्म और द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म, इट अकर्स ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस। थायराइड ग्लैंड की डिसजेनेसिस हो जा रही है, 85% थायराइड ग्लैंड जो है डिसजेनेसिस में चला जा रहा है। डिसहार्मोजेनेसिस हो जाती है, या तो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या तो ग्लैंड ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये और TSH रिसेप्टर मीडिएटेड हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलेटेड भी हमारे पास रिसेप्टर जो है वो ढंग से नहीं बन पाया। ठीक है, तो रिसेप्टर एंटीबॉडी वो ढंग से नहीं बन पाई है, उसके साथ मीडिएटेड हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड फीडिंग प्रॉब्लम सबसे पहले, फिर आता है प्रोलॉन्ग जॉन्डिस इन द पेशेंट, there is hypotonia of muscles, there is enlarged tongue, there is delayed physical growth and delayed physical development, there is mental retardation in the child and there is short stature of the child, बच्चा छोटा रह जाता है। अम्बिलिकल हर्निया कॉमन रहता है इसमें, पॉट बेली में अम्बिलिकल हर्निया देखा जाता है। अदर फीचर्स आर सीन इन अडल्ट पेशेंट्स विद हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन बच्चों में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। छोटा होगा, अम्बिलिकल हर्निया देखा जाएगा, पॉट बेली के साथ एसोसिएटेड होगा, मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा, फिजिकली और मेंटली जो है वो उसकी डिलेड ग्रोथ होगी, जीभ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, एनलार्ज टंग, मसल्स में उतनी जोर नहीं होगा, हाइपोटोनिया होगा, प्रोलॉन्ग जॉन्डिस रहेगा, पीलिया उसको बार बार होता रहेगा और खाना नहीं खाएगा ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल अनायन गैप अकर्स ड्यू टू व्हाट? नॉर्मल अनायन गैप है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, दैट इज गोइंग टू अकर ड्यू टू डायरिया। ऑलराइट, Diarrheal illness is the most common cause of normal anion gap acidosis. Diarrheal stools, अभी हमने बात की, they contain sodium, they contain potassium, they contain bicarbonate in very low concentration of chloride. Therefore, the volume depletion of hypokalemia, metabolic acidosis, they characterize this illness.
वॉल्यूम कम हो जाएगा फ्लूइड के बॉडी में, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, प्लस बाइकार्बोनेट भी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट कम होगा तो दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसोसिएटेड विद दिस is increased chloride resorption in the distal nephron and contraction of the volume along the fixed concentration of chloride, because there is no acid that is associated to counter the anion gap। ठीक है, जो क्लोराइड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एसिडिक चीज़ नहीं है हमारे पास। द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, द क्लोराइड कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, सॉरी क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, इंक्रीज, क्लोराइड इंक्रीज कर रहा है, बाइकार्बोनेट वगैरह सारी डिक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ क्लोराइड इंक्रीज कर रहा है। इन एडिशन डायरेक्ट पोटेशियम लॉस स्टूल से हो जा रहा है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो गई है, एल्डोस्टेरॉन और ज़्यादा रिलीज हो जाएगा जिससे कि डिस्टल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगा इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम, मतलब बॉडी से और ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा ताकि सोडियम को हम अंदर मेंटेन कर पाए, देयर बाय प्रमोटिंग वॉल्यूम एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ हाइपोकैलीमिया। ठीक है, मतलब पोटेशियम का एक्सेसिव लॉस हो जाएगा बॉडी से, that will lead to metabolic acidosis and a normal anion gap metabolic acidosis in diarrhea। Next question is color code 8 नंबर एंडोडोंटिक फाइल के लिए क्या रहता है? देखो ग्रे होता है कलर कोड 8 नंबर एंडोडोंटिक फाइल के लिए। हमारी सीक्वेंस सिंपल है, 6, 8, 10, फिर 5-5 का गैप चलता है 60 तक। ठीक है, 60 के बाद 10 का गैप चलता है 130 तक। ठीक है, 130 पे हमारा जो है 140 150 तक जा सकता है, ये 150 पे हमारे फाइल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब वहाँ तक हम यूज़ करते हैं। 150 वाले का डायमीटर होता है 1.82 और जो हमारा सबसे छोटी फाइल है उसका डायमीटर होता है 0.38। ठीक है, 0.38 से 1.82 तक वेरी कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स रिवाइज द कलर कोड। पिंक ग्रे पर्पल दैट इज़ 6, 8, 10, वाइट येलो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक। ठीक है, फिर ब्लू ग्रीन ब्लैक के बाद वाइट येलो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, फिर वाइट येलो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक। ठीक है, और लास्ट में एंड जो करता है दैट इज़ विद वाइट। 150 नंबर फाइल का जो कलर कोड होता है दैट इज़ वाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजू। राजू 40 साल का एक क्रोनिक स्मोकर है जो कि ओपीडी में आया है, जिसके मुंह के अंदर वाइट पैच बन गया है ऑन द कॉर्नर ऑफ द माउथ। एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन टू हिम एंड हिज काउंसलिंग वाज डन, but he doesn't want to quit smoking right now. According to trans theoretical model, he is on which stage? ये टोबैको सेसेशन वाली स्टेज है, उसको सब कुछ बता दिया लेकिन वो अभी स्मोकिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ही इज़ इन द स्टेज ऑफ प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। विच स्टेज? प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, मतलब उसको पता सब कुछ है लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है अभी। Let's go with the theory. The trans-theoretical model for behavioral change, it is an integrative theory of therapy that assesses the individual's readiness to act on a newer, healthier behavior and provide strategies or processes of change or guide to the individual. ठीक है, ये एक ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल होता है कि हम उसको सारी थ्योरी बता रहे हैं, उसको सारी नई तरीके बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, अपने इस पैच को या फिर जो भी उसको डिजीज़ है उसको ठीक कर सकता है और कैसे अपनी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। दैट इज़ अ ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल बिहेवियर चेंज एज एन इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ थेरेपी। इसमें हम रेडीनेस चेक कर रहे हैं कि बंदा कितना रेडी है, अपनी उन चीज़ों पे खुद पे काम करने के लिए कितना रेडी है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज मीन्स नॉट ready. People are not intending to take action in a foreseeable future and can be aware of their behavior and the problems associated with it. ठीक है, उसको उसकी बिहेवियर के बारे में पता है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं है जो उसको वो चीज़ कर रही है। ठीक है, नियर फ्यूचर में उस चीज़ को छोड़ने की कोई उसकी मंशा नहीं है। दैट इज़ अ प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। नेक्स्ट आती है कंटेम्पलेशन स्टेज। कंटेम्पलेशन स्टेज मीन्स गेटिंग रेडी। ही इज़ गेटिंग रेडी। पीपल आर बिगिनिंग टू रिकग्नाइज कि उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी जो सिगरेट की स्मोकिंग में कोई ना कोई दिक्कत है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए और उसको प्रोज और कॉन्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि ये छोड़ूंगा तो क्या फ़ायदा होगा और ये करता रहूँगा तो क्या मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरी फैमिली को क्या नुकसान हो रहा है। दैट इज़ अ कंटेम्पलेशन स्टेज, मतलब उसको समझ में आ रहा है, वो ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर लीविंग दैट हैबिट। थर्ड इज़ द प्रिपरेशन स्टेज। That is, people are intending to take action in immediate future and may begin taking a small step towards the behavior change. मतलब दिन की अगर 3 पीता था तो अब दिन की 1 ही पी रहा है बीड़ी। ठीक है, ये प्रिपरेशन स्टेज होती है कि धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे छोड़ूंगा। फिर आता है एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज में कि लोगों को अब हो ही गया, ओवर्ट मॉडिफिकेशन हो गई है साइकोलॉजी में, दैट
प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ एसोसिएटेड है और मुझे अब नया बिहेवियर चाहिए, ठीक है। तो वो एक भी 10-15 दिन में पी रहा है, तो वो एक्शन स्टेज पे आ गया कि मुझे धीरे धीरे छोड़नी ही है। फिर आती है बात मेंटेनेंस फेज़ की। मेंटेनेंस फेज़ में बंदे ने एक्शन ले लिया है, वो खुद को पूरे तरह से ठीक करने का एक्शन ले चुका है, सारी चीज़ें छोड़ चुका है और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ तक उसने ये चीज़ की हुई है। 6 मंथ तक ना उसने तंबाकू खाया है, ना उसने बीड़ी पी है, और 6 मंथ तक उसने हेल्दी हैबिट्स अपनाने की कोशिश की है, ठीक है। और वो खुद पे काम कर रहा है ताकि रिलैप्स ना हो सके। People are able to sustain the action for at least 6 months and are working to prevent the relapse, ठीक है। लास्ट में स्टेज आती है टर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैव ज़ीरो टेम्पटेशन, अब बीड़ी पीने का मन नहीं करता है। कोई बीड़ी पीता है तो उल्टी मारने का मन करता है साथ में बैठ के, ठीक है। और वो श्योर हैं कि अब पुरानी हेल्दी हैबिट को वो दोबारा से नहीं अपनाएंगे और नया जो उन्होंने लाइफस्टाइल लिया है उसके ऊपर ही काम करेंगे। दैट इज़ द टर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी रेडीनेस की 5 स्टेजेस आ गई। पहले प्री कंटेम्पलेशन, फिर कंटेम्पलेशन, फिर प्रेपरेशन, फिर एक्शन, एंड देन इज मेंटेनेंस, एंड लास्ट में वी हैव टर्मिनेशन।